مجھے یہاں سے نکالو، غسل دو، مٹی میں ڈالو، مجھے یہاں سے نکالو، غسل دو، مٹی میں ڈالو، مجھے یہاں سے نکالو۔ السلام علیکم۔ میں نے خوابوں کو زندگی میں کبھی اہمیت نہیں دی۔ بہت سے لوگوں کی طرح میری بھی خوابوں کے بارے میں یہی رائے تھی کہ خواب بس ایسا عمل ہے جس سے دوران نیند ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ ان کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مگر میری زندگی میں ہونے والے ایک عجیب و غریب واقعے نے میری سوچ کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اس عجیب واقعے کا ایک حصہ میرے خوابوں سے جڑا ہوا تھا جو مجھے اکثر دکھائی دیتے تھے۔ بلند و بالا شاندار عمارت، سفید لبادے میں ملبوس ایک کم عمر لڑکی جو بہت پریشان دکھائی دیتی ہے، بڑے سے شاندار لون میں پڑا ہوا جنازہ جس میں لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہوتی، صف اول میں خود میں بھی موجود ہوتا۔ شروع میں تو ان خوابوں کو میں نظر انداز کرتا رہا، مگر رفتہ رفتہ میرا دل ان خوابوں پر غور و فکر کرنے پر مجبور کرنے لگا۔ پڑھنے پڑھانے کے شوق نے مجھے قلم تھمایا تو میں ادیب بن گیا، اور روپے پیسے کی فراوانی نے مجھے سیاح بنا دیا۔ میں قدرتی حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے کسی نہ کسی صحت افزا مقام کی طرف چل پڑتا تو ساتھ میں کاغذ قلم لے کر جانا نہ بھولتا۔ بہت سے مقامات پر شاہکار تحریریں بھی لکھ ڈالیں، مگر کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس بار قدرت مجھ سے ایسی تحریر لکھوائے گی جس کا ایک کردار میں خود ہوں گا۔ اس بار میں نے سیر و تفریح کے لیے سوات کا انتخاب کیا تھا۔ وہاں مجھے ایک شاندار ہوٹل میں قیام کا موقع ملا۔ ہوٹل مینیجر سے چابی پکڑی اور اپنے روم میں آ گیا۔ شیشے کی طرح چمکتا دمکتا کمرہ، فرش پر بچھے مخملی قالین، دیواروں پر آویزاں قدیم ثقافت کو اجاگر کرتی دیدہ زیب مصوری کے فن پارے، چھتوں پر لگے نفیس و بیش قیمت فانوس۔ جہاں میں کمرے کی خوبصورتی پر حیران رہ گیا، وہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ یہ تو وہی عمارت ہے جسے میں اکثر خوابوں میں دیکھ چکا ہوں۔ میں ابھی اس عالم محویت میں تھا کہ اچانک ہی ناگوار سی بو چونکا گئی۔ سڑے ہوئے گوشت کی بدبو سے دماغ پھٹنے لگا تھا۔ میں نے روم میں پڑا ایئر فریشنر کھلے ہاتھ سے یوں استعمال کیا کہ آج ہی ساری بوتل ختم کرنے کا حکم ہو۔ ناگوار بدبو کی وجہ سے میں نے ناک پر رومال رکھ لیا تھا۔ روم کا تعفن زدہ ماحول نارمل کرنے کی خاطر کھڑکی کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ کمرے کی واحد الماری جو فرش سے چھت تک لگی ہوئی تھی، اس کے پاس 3 موٹے موٹے چوہے جو سائز میں عام چوہوں سے قدرے بڑے تھے، وہ میری موجودگی سے بے خبر کبھی الماری پر پنجے مارتے، کبھی کچھ سونگتے تو کبھی الماری پر چڑھنے کی کوشش کرتے۔ عجیب سی بے چینی و اضطراب تھا ان کی حرکات میں۔ اس قدر خوبصورت ماحول میں پہلے وہ ناگوار مہک اور پھر چوہوں کی موجودگی مجھے تو بد مزہ کر گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ چوہے بھاگ اٹھے تھے۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ الماری کے قریب وہ ناگوار بو بہت شدید آ رہی تھی کہ میرا دل متلانے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی۔ آسمان پر سرمئی بادل ادھر ادھر منڈلا رہے تھے جو موسم کی خرابی کا واضح اندیا تھا۔ نظر آسمان سے اتری تو سنگ مرمر کی شاندار مسجد کے بلند و بالا مینار پر جا ٹھہری۔ کہیں کہیں سبزہ جو دھند کے باعث ڈھکا ہوا تھا، کچھ فاصلے پر ٹھنڈے پانی کا شفاف جھرنا۔ میں اس منظر کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے دنیا و مافیا سے بیگانہ سا ہو گیا۔ دھندلے آسمان سے قطرہ قطرہ گرتی بوندوں نے میری محویت کو توڑا۔ ٹھنڈی ہلکی بارش کی بوچھاڑ اندر آئی تو میں نے جھرجھری لیتے ہوئے کھڑکی بند کر دی۔ سردی کافی بڑھ چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے کمرے میں آنے والی ناگوار بو اب تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ اسی دوران کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سر ڈنر میں کیا لیں گے؟ ہوٹل کے ملازم نے کافی کا کپ میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ حاجات ضروریہ سے فراغت کے بعد میں قلم سنبھال کر بیٹھ گیا تھا۔ موسم کی جولانیاں اپنے عروج پر تھیں۔ طوفانی بارشیں ہوٹل کی مضبوط کھڑکیوں کے ساتھ دیوانہ وار ٹکرا رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں پہلی بار مجھے کہانی لکھنے میں مشکلات ہو رہی تھیں۔ قلم بار بار رک جاتا، دھیان بھٹک جاتا۔ میں اسی پریشانی میں الجھا ہوا تھا کہ ایک سرد ہوا کا جھونکا، بلکہ برف کی مانند جھونکا میرے قریب سے گزرا تھا۔ کھڑکیاں دروازے بند تھے، ہیٹر چل رہا تھا، ماحول کو خوب گرمایا ہوا تھا، تو پھر یہ سرد جھونکا کہاں سے آیا؟ شاید کمرے میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے ہوا کا جھونکا اندر آیا تھا، مگر کہیں بھی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی۔ سو میں نے اپنا وہم جانا اور دوبارہ سے لکھنا شروع کیا۔ ابھی چند الفاظ صفحے کرتاس پر اتارے تھے کہ خالی واش روم سے پانی گرنے کی آواز نے میرے حواس مختل کر دیے۔
यूं महसूस हो रहा था कि जैसे कोई वॉश बेसिन का नल खोल और बंद कर रहा हो। मैं तेजी से उठा और वॉशरूम में झांका। वॉश बेसिन के नल से वाकई में पानी बह रहा था। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। उस कमरे का वाहिद मकीन मैं हूँ, कोई रूममेट नहीं, तो फिर नल किसने खोला? शायद मुझसे पहले जो लोग इस कमरे में ठहरे होंगे वो नल खुला छोड़ गए थे। जब पानी आया तो बहना शुरू हो गया। मैंने अपने वहम को थपकी दी और अपने दिलो दिमाग को पुरसुकून करते हुए हाथ नल की जानिब बढ़ाया ही था कि मुझे लगा कि मेरा हाथ किसी अनदेखे वजूद से टकरा गया हो। यूं महसूस हुआ जैसे दो लोगों ने बैक वक्त नल बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया हो और दोनों के हाथ टकरा गए हों। उस वहम को थपकी देने का मेरे पास हौसला नहीं था। मेरा दिल पूरी तरह से धड़कने लगा। बेइख्तियार मेरी नजर वॉश बेसिन के ऊपर लगे आईने पर जा रुकी। कोई गैर वाज़ेह सफेद अक्स आईने में दिखाई दिया और फिर गायब हो गया। उसके साथ ही बादल उस जोर से गरजा कि कानों के पर्दे फटने लगे। बारिश का शोर माहौल को मजीद खौफनाक बना रहा था। मेरे ओसान खता होने लगे तो तेजी से नल बंद करके बाहर निकल आया और फूली सांसों को दुरुस्त करने लगा। लिखने में पहले ही यकसुई नहीं थी, बाकी कसर उस ना समझ आने वाले वाक्य ने पूरी कर दी। मैंने लाइट ऑफ की और सोने के लिए लिहाफ में दुबक गया और वही ख्वाबों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। इंसानी कद के बराबर सफेद सा हेओला कमरे में चलता फिरता गैर वाज़ेह से दिखाई दिया। वो हेओला किसी मर्द का था या औरत का सही से जान नहीं पाया था। उसकी चाल में एक अनजाना सा इस्तराब था। फिर कुछ सरगोशियां होने लगी। मक्खियों की भिनभिनाहट जैसी आवाजें कान के करीब सुनाई थी। मुझे यहाँ से निकालो, गुसल दो, मुझे मिट्टी में उतारो। मुझे यहाँ से निकालो, गुसल दो, मुझे मिट्टी में उतारो। ये अल्फाज सुनते ही मेरी आंख खुल गई थी। रूम में नाइट बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। मैं आंखें फाड़े अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। ख्वाब के एक एक हिस्से पर बारीक बीनी से गौर कर रहा था। वो सरगोशियां मेरी समात में अब तक हलचल मचा रही थीं। मजबूत आसाब का होते हुए भी मैं यूं घबरा गया था तो मुझे अपने ऊपर गुस्सा भी आने लगा कि मैं यहाँ अकेला क्यों आया हूँ। किसी दोस्त को साथ ना लाकर शदीद गलती की है। मैं इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज पर मेरा दिल पूरी तरह धड़का, जैसे कोई वहशी वीराने में ढोल पीट रहा हो। दरवाजे के सख्त कब्जों से आवाज बुलंद हुई। वॉशरूम का दरवाजा बंद हो गया था। मैंने हिम्मत की और वॉशरूम जा पहुंचा। लरसते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर मुकम्मल अंधेरे का राज था। वॉश बेसिन के नल से एक बार फिर पानी बह रहा था। मेरी तो आंखें हैरत से फटी रह गईं। मैंने नल खुद बंद किया था, फिर ये कैसे खुला? मैंने दोबारा नल बंद किया तो मेरी नजर बाथरूम में मौजूद 3 मोटे चूहों पर पड़ी। वो मेरी तरफ मतवज्जा थे, मगर मेरे देखने पर वो बेखौफ अंदाज में मुझे देखते ही रहे। उनकी आंखों से वहशत टपक रही थी। मैंने खौफजदा होकर दरवाजा बंद किया और आकर बेड पर बैठ गया। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं काफी देर तक सोचता रहा था कि सुबह की आजान की सदाएं बुलंद हुई तो मेरे खौफ में कमी आई, मगर मैं ये मुअम्मा हल न कर पाया था। सारी रात बेआरामी के बाइस मेरा सर बोझल हुआ जा रहा था। वक्फे वक्फे से सड़े हुए गोश्त की बदबू ने दिलो दिमाग चकरा कर रख दिए थे। सुबह जब होटल का उम्र रसीदा मुलाजिम नाश्ता लेकर आया तो मैंने उससे पूछा, आप जानते हैं कि मुझसे पहले इस रूम में कौन लोग ठहरे थे? मेरे सवाल पर उसके माथे की गहरी होती शिकने मुझे हैरत में डाल गईं। सर चंद रोज पहले इस होटल में एक ऑफिस ट्रिप आया था। उसमें एक लड़की भी थी जो पुरअसरार तौर पर लापता हो गई थी। बहुत तलाश किया मगर कुछ अता पता न मिला तो वो लोग वापस चले गए। मुलाजिम ने मुख्तसर सा जवाब दिया और तेजी से बाहर निकल गया। मेरे जहन में अभी और भी सवालात कलबला रहे थे। मैं अब एक पल इस होटल में गुजारना नहीं चाह रहा था। बारिश तो अभी भी हो रही थी। बादलों ने दिन में रात का समा कर रखा था। मैंने सामान पकड़ा और वापसी का इरादा बांध लिया। तूफानी बारिशों के बाइस आमदोरफ्त का निजाम मुअत्तल होकर रह गया था। सर, मौसम इंतहाई खराब है। शदीद तूफान और बर्फबारी के बाइस बहुत से हादसे हो रहे हैं। इस वक्त आपका जाना अपनी जान को मुसीबत में डालने के मुतरादिफ होगा। होटल मैनेजर ने चाबी पकड़ाते हुए मुखलिसाना मशवरा दिया था। तो फिर मेरा कमरा बदल दें। सॉरी सर, इस वक्त तो तमाम रूम्स बुक हैं। मैनेजर की ये बात सुनकर मैं दोबारा कमरे में आ गया था, जबकि रात के तस्वुर से ही मुझे शदीद वहशत हो रही थी। इसके बाद 2 रातें पुरसुकून गुजर गईं। कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा ना हुआ। मैं मुतमईन हो गया। हाँ, अलबत्ता ख्वाबों का सिलसिला अब भी जारी था और वो अजीबो गरीब सरगोशियां।
सुबह उठकर भूल जाया करता था मैं। सुबह सुबह मैं अपना कैमरा पकड़ता और सैरो तफरी के लिए निकल जाता, कुदरती मनाजिर को कैमरे की आंख से महफूज करता। उन हसीन नजारों में खोकर चंद रोज पहले की पुरअसरारियत मुकम्मल तौर पर फरामोश कर गया था। शाम को अपने रूम में वापस आता और कहानी लिखने में मगन हो जाता। एक शाम होटल वापस आया तो रूम में तब्दीली का एहसास हुआ। मेरा सामान बिखरा पड़ा था, मेरी तहरीर के सफहात भी बिखरे हुए थे, जैसे शदीद तेज हवा ने सब कुछ उलट पलट कर रख दिया हो। मैं सख्त हैरान हुआ। होटल मुलाजिम से पूछा तो उसके मुख्तसर जवाब ने मुझे लाजवाब कर दिया। सर, आप रूम की चाबी अपने हाथ से मैनेजर साहब को देकर गए थे, तो आपकी वापसी तक तो चाबी उनके पास आपकी अमानत थी। मैंने उससे अलमारी की चाबी मांगी कि जितने दिन यहाँ हूँ अपना सामान हिफाजत से उसमें रख दिया करूँ, तो कहने लगा, असल में आपसे पहले जो लोग यहाँ ठहरे थे वो गलती से चाबी अपने साथ ले गए हैं, इसलिए फिलहाल ये अलमारी नहीं खोली जा सकती। मुलाजिम की इस बात ने तो मुझे और उलझा दिया। तो फिर लॉक मास्टर को बुलवाओ ताकि नई चाबी लगवाई जाए, मैंने फौरन कहा। सर, अभी मौसम की सूरत हाल के पेश नजर ये तो काम मुश्किल है, चंद रोज मजीद इंतजार कर लें तो लॉक मास्टर भी आ जाएगा। वो ये कहकर चला गया। वो पुरअसरार वाकयात जो काफी दिनों से बंद थे, उनका सिलसिला अब फिर से चल पड़ा। मेरी कहानी का रोज कोई ना कोई सफा गुम होने लगा। बैग में रख कर जाता मगर नतीजा सिफर का सिफर रहता। ऐसे लगता कि जैसे कोई नहीं चाहता कि मैं ये कहानी मुकम्मल करूं। मेरी कहानी पहले ही मुश्किलात का शिकार थी, इन वाकयात ने तो मेरा ध्यान और भी भटका दिया था। सड़े हुए गोश्त की बदबू पहले से ज्यादा आने लगी थी। मुलाजिम से पूछता तो वो लाइल्मी का इजहार करता। आईने में गैर वाज़े अक्स दिखाई देता और फिर ओझल हो जाता। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आती और फिर खुद ब खुद नल बंद हो जाता। सरगोशियां अब जागते में भी सुनाई देने लगी। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? एक मुअम्मा था जो हल होने में नहीं आ रहा था। एक शाम मौसम बहुत हसीन हो रहा था। मैंने कैमरा पकड़ा और रूम से निकलने ही लगा था कि हवा का सर्द बर्फीला झोंका मेरे करीब से गुजरा। यूं लगा कोई मेरे करीब मौजूद है। मेरा कैमरा वाजे और गैर वाजे हर तरह के मंजर को अपनी आंख में कैद रखने की सलाहियत रखता था। न जाने किस कुव्वत के जेरे असर मैंने पोलराइड कैमरे की मदद से अपने इर्द गिर्द की चंद तस्वीर ले डाली और फिर फौरी प्रिंट देखते ही खौफ से मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। मुझे अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस होने लगा। इंसानी कद के बराबर एक सफेद सा ह्योला जिसकी पुश्त मेरी जानिब थी। स्याह बिखरे बाल देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि वो ह्योला किसी लड़की का था। खौफ व दहशत के मारे में बेहोश होते होते बचा था कि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतने दिनों से मेरे इर्द गिर्द कोई चीज, कोई रूह, कुछ तो था जिसकी मौजूदगी से मैं बेखबर था, मगर वो मुझे हर पल देख रही थी। मेरे हाथों की कपकपाहट के बाइस कैमरा जमीन पर गिरते गिरते बचा था। मेरा जहन बेहद मुंतशिर था। क्या कोई नादीदा हस्ती मेरी रूममेट है? कोई रूह, बदरू, जिन या फिर कोई आसेब? इस ख्याल के आते ही मेरा जिस्म बेजान होने लगा। मैं अभी इस खौफनाक सूरत हाल से निकलने की कोशिश में था कि कमरे की लाइट ऑफ हो गई। बादल जोरदार आवाज से गरजा, साथ ही बिजली की कड़कदार आवाज ने माहौल को मजीद भयानक बना दिया। तुंदो तेज हवाओं ने होटल की मजबूत खिड़कियों और दरवाजों को हिला कर रख दिया था। मैं जो अंधेरे में टॉर्च ढूंढ रहा था यकदम दहल कर रह गया। कमरे की खिड़की एक जोरदार धमाके के साथ खुल गई। माहौल में अजीब सा इस्तराब था जो महसूस हो रहा था। मेरा सांस धूकनी की तरह चल रहा था। गोशे चिशम से मैं अपने पीछे देखने की कोशिश करता, यूं लगता जैसे कोई नादीदा मखलूक मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेगी। टॉर्च जैसे ही ऑन हुई, खिड़की के पास सफेद लिबाते में एक लड़की खड़ी थी। सया बाल खुले हुए थे, रंगत बिल्कुल सफेद जैसे जिस्म में खून का एक कतरा न हो। होंठ स्याही माहिल हो रहे थे। आंखों में इस कदर वीरानी थी कि यूं लगता था अंधेरी रात में किसी सुनसान कब्रिस्तान को देख रहा हूँ। मुझे देखकर वो कुछ बोलती थी मगर मैं कुछ ना तो समझ पा रहा था ना सुन पा रहा था। उसकी पुरअसरार सरगोशियां मेरे पर्दे समात तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ जाती थीं। कौन? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, मगर जवाब में संगीन खामोशी छाई रही। कौन हो तुम आखिर? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैं फटी फटी आवाज में चिल्लाया। वो लड़की कुछ कहने की कोशिश करती मगर मैं कुछ न सुन पाता। बिजली की चमक में उसका चेहरा देखकर मुझे मौत शिद्दत से याद आने लगी।
मैं खौफजदा होकर दरवाजे की जानिब दौड़ा और लॉक तेजी से घुमाने लगा, मगर दरवाजा तो सख्ती से बंद था। मैंने मुड़कर उसकी जानिब देखा, वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरे हाथ से टॉर्च गिर पड़ी, जो फर्श पर पड़ी दाएं बाएं झूल रही थी। वो लड़की टॉर्च की रोशनी में मजीद भयानक लग रही थी, मगर उसके अंदाज में एक कर्ब था, बेबसी थी। मगर मैं उस वहशत के आलम में अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए मैं चिल्लाया, कोई है जो मेरी मदद करे? मैं फटी फटी आवाज में चीखा और रो पड़ा। मौत मेरे बहुत करीब पहुंच चुकी थी। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। दिल ने बेइख्तियार अल्लाह का नाम लिया, दुआ मांगी कि अचानक लाइट आ गई और वो दरवाजा जो काफी देर से खुल नहीं रहा था, यकदम खुल गया। मैंने बाहर की जानिब दौड़ लगाई, जैसे कोई परिंदा पिंजरा खुल जाने पर आसमान की जानिब परवाज करता है, और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं गिरता पड़ता होटल मैनेजर के पास पहुंचा और बदहवासी के आलम में एक एक बात बताने लगा। वो मेरी हालत और मेरी बात पर हैरान रह गया। तस्दीक के लिए होटल का अमला मेरे साथ मेरे रूम में पहुंचा, मगर वो कफन पोश वजूद कहीं दिखाई न दिया, और कमरा भी बिल्कुल दुरुस्त हालत में था। और हैरत अंगेज बात जो होटल मैनेजर ने बताई कि हमारे होटल में एक लम्हे के लिए भी लाइट नहीं गई। मैं उन्हें भरपूर यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा, मगर हर आंख में बेयकीनी और तमस्खर था। राइटर बाबू, आप ही की तहरीर का कोई पुरअसरार किरदार या कोई हसीना निकल कर बाहर तो नहीं आ गई थी? बूढ़े मुलाजिम की बात पर जहां सारा अमला खिलखिला के हंस पड़ा, वहां मैं अपनी बेबसी पर तिल मिला के रह गया। प्लीज मैनेजर साहब, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा, मगर आज रात के लिए मुझे कोई और रूम दे दें, या चंद घंटों के लिए मुझे किसी का रूममेट ही बनना पड़े, मैं तैयार हूँ। मैं कतई अंदाज में बोला। देखिए सर, इस वक्त तमाम रूम्स बुक हैं। आपको जरूर कोई वहम हुआ है, या तो आप कोई पुरअसरार किताब पढ़ रहे थे और दौरान ख्वाब आप डर गए हैं। हो जाता है ऐसा भी, मगर आप वहम को जहन से निकाल दें, क्योंकि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। होटल मैनेजर ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए तसल्ली आमेज अल्फाज कहे थे। मैंने हवनकों की तरह रूम की लाइट ऑन की और लिहाफ में दुबक गया। आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखता रहा। दिल को यकीन था कि वो भयानक वजूद कहीं आस पास ही था, जो मेरी नजरों से ओझल था। दिमाग थकने लगा था और आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। गनूदगी सी तारी होने लगी थी, और फिर ख्वाब में सफेद लिबाते में वही लड़की कमरे में मौजूद थी। उसके चेहरे पर कर्बो अलम वाज़े था। मेरी कब्र कहाँ है? मेरा कफन ला दो, मुझे मिट्टी में उतार दो। वो बेकरारी से कहती हुई कमरे की अलमारी के करीब बैठकर रोने लगी। भयानक सिसकियों से मेरा दिल होलने लगा। हड़बड़ाकर मेरी आंख खुल गई थी। मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था कि मैं जरूर किसी आसेबी चक्कर में फंस गया हूँ और अब शायद मर के ही निकल पाऊं। इसी असना में मोबाइल की बेल बजी। अम्मी का नंबर देखकर मेरा दिल चाहा कि धाड़े मार मार कर रोने लगूं कि अम्मी, आपका बेटा ऐसे कमरे में कैद होकर रह गया है जहां से निकलने की कोई सूरत नहीं बन रही। बेटा, कब तक वापसी है तुम्हारी? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। काफी दिनों से तुम्हारे बारे में अजीब अजीब ख्वाब आ रहे हैं और मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। बस बहुत हो गई सैरो तफरी, अब जल्दी लौटो। अम्मी मेरे लिए बेहद फिक्रमंद थी। मेरा दिल चाह रहा था कि पर लगाकर उड़ जाऊं और अम्मी के पास जा पहुंचूं, उनकी आगोश में गहरी नींद सो जाऊं और हर खौफ से आजाद हो जाऊं। अम्मी तूफानी बारिशों के बाइस आमदोरफ्त का निजाम मुअत्तल होकर रह गया है। जैसे ही कोई सूरत बनती है मैं वापस आ जाऊंगा। मैंने अपनी माँ को तसल्ली दी, असल बात बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, वरना दिल चाह रहा था कि कह दूं, अम्मी, पता नहीं अब मैं जिंदा वापस आपके पास आ भी सकूंगा या नहीं। देखो बेटा, जरा बराबर भी मुश्किल आए तो उस रहमान को मदद के लिए पुकारना। वो अपने बंदों के लिए ऐसे असबाब बनाता है कि इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता। सुबह की अजान की सदाएं बुलंद होने लगी। मैं सजदे में सर रखकर देर तक उस पाक परवरदिगार से मदद मांगता रहा और गिरिया जारी करता रहा। तूफानी बारिशों का सिलसिला अभी तक जारी था। यूं महसूस हो रहा था कि जैसे कुदरत को अभी मंजूर ही ना हो कि मैं यहाँ से जाऊं। जिस जगह मौत लिख दी गई है, उस मुकाम से इंसान चाह के भी फरार नहीं हो सकता। इस सोच ने मुझे कदरे मुतमईन कर दिया था। दूसरी सुबह होटल मैनेजर ने मेरे साथ ये मेहरबानी की कि मेरे कमरे की खास तौर पर सफाई सुथराई करवाई। नागवार भूख के खात्मे के लिए उम्दा स्प्रे करवाया गया और लॉक मास्टर का फौरी इंतजाम करवाया गया ताकि अलमारी को खोला जाए।
पिछले 1 घंटे से लॉक मास्टर लगा हुआ था, मगर अलमारी खुलने पर नहीं आ रही थी। आखिर अल्लाह अल्लाह करके अलमारी खुली तो फिर पूरा कमरा चीखों से गूंज उठा। सारे अमले में खलबली सी मच गई। सफेद चादर में लिपटी लाश जो एक बहुत बड़े मोमी लिफाफे में बंद थी, वो धम करके लॉक मास्टर के ऊपर गिरी। लॉक मास्टर बेचारा खौफ के मारे बेहोश हो गया। सारे कमरे में ताफून सा फैल गया। बदबू के मारे उल्टियां आने लगी। मैं ये सारा मंजर हैरान परेशान दिखता रह गया। होटल मालिकान ने बदनामी के डर से मुझसे किसी किस्म का कोई रेंट न लिया, बल्कि वादा लिया गया कि आप ये खबर अखबार में नहीं देंगे वरना हमारा होटल बर्बाद हो जाएगा। पुलिस को इत्तला दिए बगैर उस नामालूम लड़की की लाश की तजहीज़ो तदफीन कर दी गई, वो भी इंतहाई खुफिया अंदाज में। उसका जनाजा पढ़ाया गया और मैं सफ़े अव्वल में खड़ा था। ख्वाब का वो सिलसिला खत्म हो चुका था, क्योंकि हर ख्वाब लफ्ज ब लफ्ज पूरा हुआ था। मेरे यहाँ आने का वो मकसद पूरा हो गया था जिससे मैं बिल्कुल ला इल्म था। मैंने अपना सामान समेटा, मुतमईन अंदाज में अपना सफर शुरू किया। कातिबे तकदीर की मुझे यहाँ मुसलसल ठहराए रखने की जो मसलहत थी, वो समझ आ चुकी थी। मैं कमरे से निकलने लगा था कि मेरी नजर एक स्याह डायरी पर पड़ी। मैंने वो खोली तो उसमें हुरिया जुल्करनैन बहुत नफासत से लिखा हुआ था। मैंने वो डायरी अपने सामान में रख ली और घर आ गया। डायरी में उस नामालूम लड़की की तस्वीर, जाली निकाहनामा और कुछ अधूरी इबारतें थीं, जिनसे मैं ये समझ पाया था कि एक बदनसीब बिनते हवा को अपने बॉस से मोहब्बत हो गई थी। मोहब्बत के दावे और कस्में उस इब्ने आदम ने वैसे ही खाए जैसे हर मर्द करता है। उस शख्स ने जाली निकाह किया, वो बदनसीब अपना सब कुछ बर्बाद कर चुकी तो उस शख्स की असलियत खुली जो एक अय्याश मर्द था। उस मर्द ने जान छुड़ाने की कोशिश की, जिसका इजहार हुरिया ने डायरी में भी किया। जगह जगह डायरी पर गिरे हुए आंसुओं के निशानात भी थे और एक बिनते हवा धोखा खा गई थी। डायरी के आखिर में लिखे गए अल्फाज पढ़कर मुझे अपने मर्द होने पर शर्म आने लगी कि हम मर्द हर हद पार कर जाते हैं। वो आखिरी लाइनें ये थीं, मर्द को अगर मर्द न कहते तो शायद मरदूत कहते। अल्लाह पाक अगर शैतान के बाद किसी को अपनी मखलूक में मरदूत करार देता तो यकीनन मर्द ही होते। ये उस लड़की की सोच थी जो उसने वहां तहरीर की थी। मैं कितनी देर रंजीता रहा, उसकी बेबस मौत बल्कि कत्ल पर आंसू बहाता रहा। जब वो असलियत जान गई तो उस शख्स ने उस लड़की का कत्ल कर दिया। अपनी हवस पूरी करके उसे मारकर अलमारी में लाश छुपा दी, मगर वो बेचारी भटकती रही, मदद मांगती रही। इस वाक़ये को 7 साल गुजर चुके हैं। मैंने ख्वाबों को कभी अहमियत नहीं दी थी, पर इस वाक़ये ने मुझ पर वाज़े कर दिया है कि ख्वाब वाकई आधी जिंदगी होते हैं। बहुत से मामलातों वाक़यात इंसानी आंख से ओझल होते हैं, वो हमें ख्वाब में दिखाए जाते हैं। पूरे 7 दिन मैंने उस कमरे में गुजारे जहाँ एक लड़की की रूह मेरी रूममेट रही थी। वो मुझसे मदद मांग रही थी। तालिबे गुस्ल मैयत उस बेचारी को बार बार पानी की तरफ ले जाती। वॉशरूम में पानी गिरने के पीछे ये राज था। अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना। पहले ख्वाबों के जरिए मुझे मुत्तला किया गया और जब तक उसे कब्र में उतार नहीं दिया, उसने मुझे एक कमरे में कैद कर दिया और बाहर निकलने की हर सबील बंद कर दी। तूफानी बारिशें होती रहीं, मगर जब सारा काम पाए तकमील तक पहुंच गया तो बारिश भी बंद हो गई और रास्ते भी खुल गए। मैं आज भी उस वाक़ये को सोचता हूँ तो दिल में इंतहाई सुकून महसूस करता हूँ कि मैं एक मजलूम के काम आया, और शुक्र है मैं उन मर्दों में से नहीं था जिन्हें हुरिया जुल्करनैन ने अपनी डायरी में मरदूत कहा था। मुझे नहीं मालूम कि ये कहानी सच्ची है या झूठी। मैंने सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए अपने चैनल पर ये कहानी पढ़ती है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी सच्ची है, ये कहानी झूठी है, रूहें नहीं होती, ख्वाबों में ऐसे इशारे नहीं आते। इस तरह की बहस में सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स नहीं पड़ेंगे। बेहतर यही है कि इसको सिर्फ एक कहानी समझकर ही सुना जाए।